வணக்கம் ஈரோடு மக்கள் எல்லா பேத்துக்குமே பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் ஜெயின் அமைப் ஜிட்டோ ஜெயின் இன்டர்நேஷ்னல் ட்ரேட் ஆர்கனைசேஷன். நாங்கள் வந்து நிறைய சேவைகள் கோவிட்ல எல்லாம் கூட பண்ணியிருக்கோம். நீங்கள் அதெல்லாம் நிறையா வீடியோஸ் ஃபோட்டோஸ் எல்லாம் பார்த்துருக்கீங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் பிஸ்னஸ் டெவலப்மெண்ட்டுக்காக பிஸ்னஸ் எப்படி டெவலப் பண்ணுறது எல்லா ஃபீல்ட்லேயும் நம்ம நிறையா ஜெயின் ஆல் ஓவர் வேர்ல்டு இருக்காங்க. ஸோ அதுக்கு வந்து டெவலப்மெண்ட்டுக்காக உங்கள் கூட கை கோர்த்து நாங்கள் ஜேபிஎன்னு சொல்லி ஒரு நெட்வொர்க் ஆரம்பிச்சிருக்கோம். கண்டிப்பாக நம்ம ஈரோடு மக்கள் எல்லா பேருமே நல்லா பிஸ்னஸ் செய்யலாம், சேர்ந்து இணைந்து நல்லா ஃபென்டாஸ்டிக்காக எல்லா பேருமே க்ரோத் ஆகலாம், கம்யூனிட்டியும் க்ரோத் ஆகுங்க. ஸோ அதுக்காக தான் இந்த ஜிட்டோங்கிற அமைப்பு. அதுக்கு நான் செக்ரட்டரி இந்த இயர். என் கூட இருக்கிறவர் பார்த்தீங்கன்னா கௌதம்ஜி போத்ரா, அவர் இப்போ சீஃப் செக்ரட்டரி. பிரகாஷ் ஜெயின் அவரும் நம்ம கூட இருக்கார். சந்துஜி அவர் இருக்கார். அப்புறம் சந்தீப்ஜி இருக்கார், பொருளாளர் இருக்கார். ராஜேஷ் சாஜேட், அப்புறம் ராஜுஜி கட்டாரியா. இந்தமாரி அமைப்புக்கு பார்த்திங்கன்னா ஒரு 50 பேர் நம்ம கம்யூனிட்டியில் இருக்காங்க. ரொம்ப நன்றி, தேங்க்யூ. வணக்கம் ஈரோடு மக்கள். இது வந்து ஜீத்தோ ஜெயின் இன்டர்நேஷ்னல் ட்ரேட் ஆர்கனைசேஷன்லேருந்து நாங்கள் லேடிஸ் விங்கோட பேசிகிட்டு இருக்கோம். நாங்கள் வந்து திஸ் இஸ் ஃபார் பிஸ்னஸ் என்டர்பிரினர்ஸ், விமென் பிஸ்னஸ் என்டர்பிரினர்ஸ். அவங்க வீட்டிலேருந்து ஜோ லேடிஸ் எல்லாம் ஒர்க் பண்ணுறாங்களே, நான் அவங்களுக்கு வி பிரிங் தம் ஃபார்வர்ட், அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறோம். அண்ட் தென் ஃபைனான்ஷியலி, எக்கனாமிக்கலி, எஜுகேஷ்னலி எல்லாருக்கும் நாங்கள் ஹெல்ப் பண்ணுறோம். தென் டியூரிங் கோவிட் அண்ட் ஆல் கொஞ்சம் சோஷியல் ஒர்க் கூட செய்வோம். அண்ட் எங்களுக்கு மெயின் மோட்டிவ் இஸ் டு பிரிங் லேடிஸ் ஃபார்வர்ட் அண்ட் லேடிஸ் அண்ட் கேர்ள்ஸ் அண்ட் தென் சோஷியல் சர்வீஸ் கூட பண்ணுறோம். அண்ட் மெயின் எய்ம் இஸ் டு என்டர்பிரினர்ஸ், ஹோம் என்டர்பிரினர்ஸ்க்கு फॉरवर्ड எடுத்துட்டு வரணும். थैंक यू, नंरी। नमस्ते, जय जिनेंद्र। हम लोग जीतो विंग से हैं, लेडीज़ विंग से। बस इसमें एक ही है, हम लोग लेडीज़ को जितना हो सके आगे ला सकें, उनके सहयोगी बन सके, अच्छे से अच्छा उनको प्लेटफॉर्म मिल सके, इसी आशा से हम लोग ने ये शुरू किया है। और अभी 100 मेंबर्स हो चुके हैं और इंतज़ार है ऐसे ही बढ़ता रहे और लेडीज़ आगे आते रहें और इतिहास रचे और देश को आगे बढ़ाने में हम लोग भी एक अच्छे सहयोगी बन सके, इसी भावना से थैंक यू। वणक्कम, ईरोड माउंटेन श्री सालासा स्वीट फुड अल्ल A to Z वंदा नॉर्थ इंडियन साउथ इंडियन अल्ल में फुड रेडी पण्णறக்கு सामा टेस्ट A to Z கேட்ரிங் பண்ணுறக்கு ஸ்ரீ சலாசா ஸ்வீட் ஈரோடு. வணக்கம், எல்லாத்தையும் கூப்பிட்டு நல்லா சூப்பர் செஞ்சுட்டு கொடுத்துறேன். வணக்கம்। जीतो के आज शपथ विधि कार्यक्रम में पधारे हैं, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। अभी सभी लोग अपने स्थान पे खड़े हो जाएंगे, जूते चप्पल निकाल देंगे, नवकार मंत्र रहेगा, इसलिए सभी से नम्र निवेदन है अपनी जगह पर खड़े हो जाएंगे, जूते चप्पल सब निकाल देंगे। पहला कार्यक्रम की प्रस्तुति दे रहे क्रैकर्स ग्रुप के सभी सदस्य स्टेज पे पधारेंगे।
अंबर तुझे गुण गाती, हे तारे हे वारे तुझे नाम घेती, ही धरती हे अंबर तुझे गुण गाती, हे तारे हे वारे तुझे नाम घेती. विश्वाचा पालक तू नायक गणांचा, गुणातीत गुणमय तू गुरु ज्ञानदाता. विश्वाचा पालक तू नायक गणांचा, गुणातीत गुणमय तू गुरु ज्ञानदाता. मोरया रे मोरया रे बाप्पा मोरया, मोरया रे मोरया रे मोरया रे बाप्पा मोरया. स्वैग से करेंगे सबका स्वागत. सभी प्रतियोगिता से निवेदन है स्टेज पे ही खड़े रहेंगे. उनको पुरस्कृत करने के लिए मैं जीतो एपेक्स वाइस प्रेसिडेंट श्री नरेंद्र जी श्रीसिमाल जी को स्टेज पे आमंत्रित करता हूँ. टीएपीटीज जोन के चेयरमैन जितेंद्र जी भंडारी स्टेज पे पधारेंगे. ईरोड चैप्टर के चेयरमैन विनोद जी करबावल स्टेज पे पधारेंगे. और ईरोड चैप्टर के अपकमिंग चेयरमैन गौतम जी बोत्रा स्टेज पे इनको पुरस्कार देने के लिए पधारेंगे. अपकमिंग चीफ सेक्रेटरी विपुल जी कंडालिया स्टेज पे पधारेंगे. और अपकमिंग ट्रेजरर राजेश जी छाजेड़. पुदीना देगा नाका नागिना देगा चिकनी चमेली देखी चिकना कमीना देगा चांदनी चिडर होके चीट किया तो सारे तारे बोले गिली गिली अक्खा. मेरी बात तेरी बात ज्यादा बातें बुरी बात, थाली में कंडोरा लेकर आलू भात मूड़ी भात. मेरे भी जो किसी ने रिपीट किया तो साला मैंने तेरे मुंह पे मारा मुक्का. खड़ा है कम वक्त छोड़ना जाने ना. बदतमीज दिल बदतमीज दिल बदतमीज दिल माने ना बदतमीज दिल बदतमीज दिल बदतमीज दिल माने ना. ये जो हाल है सवाल है कमाल है जाने ना बदतमीज दिल बदतमीज दिल बदतमीज दिल माने ना. इनको पुरस्कृत करने के लिए जीतो एपेक्स वाइस प्रेसिडेंट नरेंद्र जी श्रीसिमाल को स्टेज पे आमंत्रित करता हूं. और टीएपीटी जोन के अपने चेयरमैन जितेंद्र जी भंडारी को आमंत्रित करता हूं. ठीक है, कार्यक्रम को आगे ले जाते हुए दीप प्रज्वलन के लिए मैं जीतो एपेक्स वाइस प्रेसिडेंट नरेंद्र जी श्रीसिमाल को स्टेज पे आमंत्रित करता हूं. टीएनएपीटीज जोन के चेयरमैन जितेंद्र जी भंडारी को स्टेज पे आमंत्रित करता हूं.
अपने चेयरमैन विनोद जी करबावाला को स्टेज पे आमंत्रित करता हूँ। मैं सेल्फ कल्पेश राठौड़ इधर ही हूँ। अपकमिंग टीम से बोर्ड मेंबर श्रीपाल जी बाफना को स्टेज पे आमंत्रित करता हूँ मैं। जॉइंट ट्रेजरर पुनीत जी कोचर को स्टेज पे आमंत्रित करता हूँ। ट्रेजरर राजेश जी छाजेड़ को स्टेज पे आमंत्रित करता हूँ। सेक्रेटरी कल्पेश करबावाला को स्टेज पे आमंत्रित करता हूँ। चीफ सेक्रेटरी विपुल जी चंडालिया को मैं स्टेज पे आमंत्रित करता हूँ। वाइस चेयरमैन प्रकाश जी जैन को मैं स्टेज पे आमंत्रित करता हूँ। वाइस चेयरमैन आलोक जी जैन को मैं स्टेज पे आमंत्रित करता हूँ। और अपकमिंग चेयरमैन गौतम जी बोत्रा को मैं स्टेज पे आमंत्रित करता हूँ। कोयम्बतूर से पधारे हुए राजेश जी बोरा और कुशल जी, चीफ पैटर्न मेंबर अशोक जी बोत्रा को भी मैं स्टेज पे आमंत्रित करता हूँ। लेडीज विंग के चेयरपर्सन ममता जी कटारिया को स्टेज पे आमंत्रित करता हूँ। और यूथ विंग के चेयरमैन ऋषभ जी पारे को स्टेज पे आमंत्रित करता हूँ मैं। ललित जी धारीवाल आ गए, आप भी स्टेज पे पधारिए। हमारे कार्यकाल के लेडीज विंग चेयरपर्सन जयमाला जी बोत्रा यहाँ वो तो पधारेंगे स्टेज पे। और हमारे कार्यकाल के यूथ विंग चेयरमैन प्रवीण जी वडारे स्टेज पे पधारेंगे। चीफ पैटर्न मेंबर अशोक जी बोत्रा स्टेज पे पधारेंगे। हमारे चीफ गेस्ट एन मनीष जी संकराव आईएएस ऑफिसर एडिशनल कलेक्टर पधारे, आप स्टेज पे पधारेंगे। अपने चीफ गेस्ट श्री एन मनीष जी संकराव जी पधारे, आईएएस ऑफिसर एडिशनल कलेक्टर ऑफ वीरोड है। उनका बहुमान अपकमिंग चेयरमैन विनोद जी गौतम जी बोत्रा सवाल दौरा करेंगे। मोमेंट द्वारा उनका सम्मान अपकमिंग चीफ सेक्रेटरी विपुल जी चंडालिया करेंगे। मनीष जी संकराव को मैं स्टेज पे 2 शब्द कहने के लिए आमंत्रित करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर इनवाइटिंग मी फॉर दिस प्रोग्राम। अभी यहाँ पे इन्हें पहली बार तमिलनाडु में हिंदी कोई बोलने का मौका मिल रहा है, बिकॉज
just I'll tell you about myself. 2016 batch, like I am a 2016 batch officer. यहाँ पे मैं 2017 में सबसे पहली पोस्टिंग तिरुचिरापल्ली करके एक सिटी है वहाँ पे थी. उसके बाद 2 साल में सब कलेक्टर तिरुनेलवेली करके एक जगह है वहाँ पे 2 साल था. उसके बाद फिर 2-2.5 साल में चेन्नई में था ड्यूरिंग कोविड टाइम. और उसके बाद अभी ये पोस्टिंग के पहले अभी राइट नाउ आई एम ईरोड सिटी कमिश्नर. उसके पहले यहाँ पे एडिशनल कलेक्टर ही था, ईरोड में ही था. सो दिस इज़ माई अराउंड 5th-6th पोस्टिंग. सो around 7-8 years I am in Tamil Nadu. My native place is in Maharashtra, Yavatmal करके एक डिस्ट्रिक्ट है नागपुर के पास. So वहाँ पे till 12th I studied. After that 5.5 years I studied in Mumbai, Grand Medical College जो हॉस्पिटल है वहाँ पे MBBS की. उसके बाद फिर I wrote this examination. Delhi I did preparation. Just one of the incident I'll tell you. One of my friend was there from KEM hospital. He is now Indian foreign service officer. Earlier कुछ साल वो जापान में थे. He also I think through Jito only they had coaching institute in Delhi. He prepared there only. So I think this is a very great noble contribution by the community for the students of the community. I really appreciate, and I think I just today also went through the website of your Jito website. Lot of good networking is there. I think one of the very good strong network, not only business point of view, other all related. I think you have all different wing, youth wing, IRCO, I think ladies wing is there, all different kinds of wings are there, and lot of CSR activities you are doing, lot of other contributions you are doing, and I think many families will be here settled for more than 30 years. 20-30 साल से यहाँ पे रह गए. So I think being a very new land we can say, because many of the people they came from north only. जो भी आए होंगे राजस्थान, वो नॉर्थ साइड है, राजस्थान गुजरात वो साइड से यहाँ पे सेटल हो गए. तो ये नया कल्चर है यहाँ का, यहाँ की लैंग्वेज है, यहाँ के फूड है. टू एक्लेमेटाइज दिस इटसेल्फ इज़ अ बिग चैलेंज. नाउ मी एंड माई ऑल्सो अभी 7 साल में थोड़ा लैंग्वेज सीख गए हैं, थोड़ा लोकल फूड जो भी है उसको एक्लेमेटाइज हो गए हैं. सो इट इज़ अ वेरी गुड स्टेट. लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से तो बहुत अच्छा स्टेट है. यहाँ पे वुमेन एजुकेशन है, वुमेन एम्पावरमेंट है, इसमें बढ़िया काम हुआ है. और एक लोकल आइडेंटिटी जैसी है, जैसी हर स्टेट में जाते हैं तो एक कॉमन बाइंडिंग लैंग्वेज हिंदी रहती है, लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो मोस्टली तमिल ही प्रेफर करते हैं लोग. और दैट इज़ ओनली बाइंडिंग देम फॉर द स्टेट. सो दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द यूनिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द स्टेट. एंड डेफिनेटली इट इज़ अ वेरी गुड exposure for me. Consecutive 6 years, that too in Erode. Erode itself is a very, compared to जैसे बोला जाता है कि तमिलनाडु में ऐसे 3-4 रीजन बोला जाता है, नॉर्थ, वेस्टर्न बेल्ट, सेंट्रल बेल्ट एंड सदर्न बेल्ट. मैंने पहले 2 साल पोस्टिंग थी मेरी वन ऑफ द वेरी चैलेंजिंग डिस्ट्रिक्ट तिरुनेलवेली. वहाँ पे तो बहुत लॉ एंड ऑर्डर वाला इशू रहता था. वहाँ पे बहुत कास्ट कन्फ्लिक्ट, बहुत सारे यानी इशूज़ रहते थे. आफ्टर दैट आई थिंक बीइंग पोस्टेड इन द लास्ट, अभी दिस मार्च आई विल बी कंप्लीटिंग 2 साल कंप्लीट हो जाएंगे. सो वन ऑफ द वेरी पीसफुल बेल्ट, पीपल आर वेरी प्रोफेशनल, वेरी डोसाइल, वेरी अप टू द मार्क. यानी यहाँ पे जैसे तिरुल में रहता था तो छोटे छोटे चीज़ों पे वहाँ पे 2 लोगों के छोटे एक टेम्पल है, वहाँ पे कुछ तो झगड़ा हो गया, फिर 10 लोग उनका पंचायत बैठाओ, फिर उनका वो जो भी सिक्योरिटी प्रोसीडिंग रहता है वो करो. लेकिन वो हिसाब से यहाँ पे मैं आई हैव बीन कंप्लीटिंग 2 years, नॉट अ सिंगल सच काइंड ऑफ इशू इज़ देयर. इवन पॉलिटिकली ऑल्सो वेरी एजुकेटेड, वेरी वेल लर्नड, वेरी पेशेंट लोकल रिप्रेजेंटेटिव है. यहाँ पे लोकल मेयर है, लोकल MP है, लोकल MLA है. दे आर वेरी कोऑपरेटिव. आई मीन वॉट एवर इज देयर विद कंसल्टेशन दे विल डू. सो फॉर मी इट इज़ अ वेरी गुड एक्सपोजर. वैसे ही ये बोलते कि ये वेस्टर्न बेल्ट, कोयम्बतूर, सेलम, तिरुपुर, ये ईरोड, नामक्कल, ये तो ऑलवेज इट इज़ वन ऑफ द बेटर बेल्ट फॉर ऑफिसर्स. सो इट इज़ अ वेरी गुड एक्सपोजर फॉर मी एंड माई फैमिली ऑल्सो. So my wife is also, she's studied MBA from IIM Calcutta, and she's also now acclimatized to this place. So, and I have one daughter which she's studying in the Indian Public School, TIPS करके वहाँ पे करते हैं. यहाँ पे education, health and education are one of the better facility what I found it, and in general community. अभी यहाँ पे आने के बाद ही first time this, I think last ईद नवरात्रि I attended one program here. यहाँ पे वो गरबा वाला प्रोग्राम था, नहीं तो ये पूरे 7 साल में कभी अटेंड ही नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे इज अ वेरी वाइब्रेंट नॉर्थ इंडियन community is there.
and they have a lot of cultural activities. So I keep on meeting. ये विपुल जी हैं, वो भी बहुत कॉर्पोरेशन आके we keep on interacting. आशीष जी हैं, not only one of I think my junior one ऋषभ जैन ऑफिसर्स है, उनकी वाइफ भी I think यहाँ से ही है. I think so in generally यहाँ पे तो I find it, one of my friend is also there in Indian Railway Traffic Service. He's posted in I think UP or somewhere. He also keeps coming, so it is very good. I think people have not only done business, they have prospered in education, they have become doctors, lawyers, chartered accountants, officers. So it is a very good community, and once again I thank you for them inviting me here, and I think I love to be part of this. Thank you. मनीष जी को अपने कीमती समय में से समय निकाल के अपने कार्यक्रम में उपस्थित रहे और अपने को कार्यक्रम में सहभागी बने, उसके लिए मनीष जी का बहुत बहुत धन्यवाद है। कार्यक्रम को आगे ले जाते हुए स्वागत भाषण के लिए चेयरमैन श्री विनोद जी करबावलो को मैं स्टेज पे आमंत्रित करता हूं। सादर जय जिनेंद्र। अपने एपेक्स के वाइस प्रेसिडेंट श्री नरेंद्र भाई श्री श्रीमल जी, टीएनपी जोन के श्री जितेंद्र भाई भंडारी, और अभी नेक्स्ट में श्री गौतम जी भूतरा, और सेक्रेटरी श्री विपुल जी, बाकी मेरे दोस्तों और बहनों, आप सबका मैं हार्दिक दिल से इस प्रोग्राम में स्वागत करता हूं। और विशेष करके जो अपने नरेंद्र भाई है, जो अपना टाइम निकाल के इतने दूर एक छोटे गांव ईरोड में आप लोग आए हैं, और आप आने से यहाँ क्या फंक्शन में उत्साह बढ़ जाता है। लोगों को लगता है कि नहीं जीतो में कुछ ना कुछ, ईरोड जीतो भी एक अच्छे चैप्टर में है करके। श्री जितेंद्र भाई, आप भी इतने दूर से पधारे हैं, और विशेष करके मैं आप दोनों का दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। और आपकी उपस्थिति हमको इनडायरेक्टली बहुत फ़ायदा होगा, मैं आपको क्लियरली बताता हूं। आप लोग आने से कुछ ना कुछ बूस्ट मिलता है चैप्टर को। बाकी अभी जो नया चैप्टर बना है, और जो अपने गौतम जी हैं, ये पहले भी काम कर चुके हैं। उस समय कुछ कोविड था, तो अभी आपको पूरा मैदान खुला मिलेगा 2 साल के लिए। आप बढ़िया से, और आशा करता हूँ जो आपने पहले किया था, अभी आपके ऊपर तो कोई बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि पहले ही आपका जो काम था सुपर था, और अब कोई डिस्टर्ब नहीं होगा 2 साल, आने वाले 2 साल। तो बहुत बढ़िया जीतों को आगे आप लेके जाएंगे, और विशेष करके कुछ काम हमारे कारण नहीं हो सका है, वो आप ज़रूर आगे इसको बढ़ावा देंगे। फिर से मैं आप सबका स्वागत करता हूँ, धन्यवाद। विनोद जी को बहुत बहुत धन्यवाद है। आगे 2022-24 के हमारे कार्यकाल में चैप्टर के 27 कार्यक्रम हुए, उसमें 2 इंटर चैप्टर कार्यक्रम कोयम्बतूर के साथ हुए थे। उसके बाद में लेडीज़ विंग के 44 कार्यक्रम हुए, उसमें एक इंटर चैप्टर कार्यक्रम हुआ, एक इंटर जोन कार्यक्रम हुआ, और एक नेशनल कार्यक्रम हुआ। जो नेशनल कार्यक्रम के लिए अपने को एनुअल समिट में अवार्ड भी मिला हुआ है। उसके बाद में यूथ विंग के 13 कार्यक्रम हुआ, उसमें एक इंटर चैप्टर कोयम्बतूर से कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम सब नहीं बताएंगे, इसके लिए अपना 2 साल का कार्यकाल का एक वीडियो है छोटा 6 मिनट का, उसमें सब दिखाया जाएगा। 2022-24 के कार्यक्रम की शॉर्ट फिल्म थी। कार्यक्रम टोटल सब मिला के 84 कार्यक्रम चैप्टर से द्वारा, चैप्टर लेडीज़ विंग यूथ विंग मिल के किए गए। कार्यक्रम को आगे ले जाते हुए मैं जीतो एपेक्स वाइस प्रेसिडेंट श्री नरेंद्र सीसेमाल को 2 शब्द बोलने के लिए आमंत्रित करता हूँ। प्रणाम। आज के मुख्य अतिथि कमिश्नर ऑफ ईरोड मनीष जी, आउटगोइंग चेयरमैन विनोद जी, आउटगोइंग सेक्रेटरी कल्पेश जी, आउटगोइंग लेडीज़ विंग चेयरमैन जयमाला बोत्रा जी, आउटगोइंग लेडीज़ विंग सेक्रेटरी वैशाली जी, आउटगोइंग यूथ विंग चेयरमैन प्रवीण, आउटगोइंग यूथ विंग सेक्रेटरी ऋषभ, हमारे डायनेमिक सेकेंड टाइम पोजीशन लेने वाले इनकमिंग गौतम जी एज चेयरमैन, उनके साथ विपुल एज चीफ सेक्रेटरी, ममता जी लेडीज़ विंग चेयरमैन इनकमिंग, साथ में समता जी एज चीफ सेक्रेटरी, ऋषभ पारेख एज यूथ विंग चेयरमैन, एंड अमन जैन एज यूथ विंग
इनकमिंग सेक्रेटरी, सबको सादर जय जिनेंद्र व प्रणाम। जीतो 2007 से शुरू हुआ है। ये ईरोड में मेरी तीसरी बार मैं आ रहा हूँ। जीतो की स्थापना ईरोड के अंदर 2017 में 16 में जब ये ईरोड चैप्टर शुरू हुआ तब मैं पहली बार यहाँ आया था 2016 में। इस चैप्टर को शुरुआत करने में मेरा काफ़ी योगदान है। और जीतो कनेक्ट की टाइम जब मैं चेन्नई चैप्टर का चेयरमैन था उस टाइम, तो हमने यहाँ पे चैप्टर को इनॉग्रेट किया। और आज खुशी की बात है कि चैप्टर ग्रो हो रहा है। कभी भी अपने आप को छोटा चैप्टर मत सोचिए। जो आज छोटा है कल वो बड़ा होता है। तो अपने आप को आप छोटा मत समझिए। जितना चेन्नई भी एक ज़माने में सबसे छोटा चैप्टर था। 2007 में चेन्नई हम 11 FCP से शुरू हुआ। आज चेन्नई इज़ द बिगेस्ट चैप्टर इन द कंट्री। करीब 450 FCP है, CP है। सो 11 से 450 और चेन्नई परिवार करीब 6000 मेंबर का है। लेडीज़ विंग, यूथ विंग, पेट्रन सबको मिलाएं। और भारतवर्ष में जीतो करीब 50,000 लोगों का परिवार है। सो काफ़ी जीतो फैल चुका है इस 17 सालों के अंदर। हमारे 70 चैप्टर हैं, हमारे इंटरनेशनल 31 चैप्टर हैं और हम ग्रो करते जा रहे हैं। तो जीतो के बहुत सारे विंग्स भी हैं। आप सबको पता ही है, GATF, श्रमण आरोग्यम और जीफ, ये जीतो के मेन विंग्स हैं। GATF जैसे कमिश्नर साहब ने भी बताया कि हमारा GATF दिल्ली में हेडक्वार्टर्ड है। हम हर साल अपने बच्चों को IAS IPS की ट्रेनिंग देते हैं। और खुशी की बात है आज करीब 350 अफसर हमारे पोस्ट हो चुके हैं। और स्टेट लेवल में भी हमारे करीब 400 अफसर स्टेट लेवल में पोस्ट हो चुके हैं। सर ने जो ऋषभ जी की बात की थी, ही इज़ ऑल्सो ए बाई प्रोडक्ट ऑफ GATF, जो GATF से ही पास होके बाहर निकला है। सो काफ़ी सारे हमारे बच्चे आज अच्छी पोजीशंस में पूरे देश के अंदर है और वो बढ़ता जा रहा है। सेकंड, हमारा बड़ा कार्यक्रम है श्रमण आरोग्यम। जो श्रमण आरोग्यम हम हमारे साधु भगवंतों के लिए करते हैं। उनके आशीर्वाद के बिना जैन शासन ही नहीं है। तो आज हमारे गुरु भगवंत हमारे मार्गदर्शक हैं। हम उनको हमारे लिए बहुत ही पूजनीय हैं। तो हमारे गुरु भगवंतों की कोई KYC नहीं है, उनके पास कोई परमानेंट एड्रेस नहीं है। तो उनकी जो मेडिकल सहायता चाहिए वो करने के लिए बहुत सारे छोटे छोटे संघ सक्षम नहीं रहते। बड़े संघ, बड़े आचार्य भगवान तो हर एक की केयर कर लेते हैं, पर छोटे संघ में या छोटे साधु साधियों की कोई केयर करता नहीं। तो श्रमण आरोग्यम उसके अंदर पूरा उनका खर्चा लेता है, इंश्योरेंस नहीं, टोटल मेडिकल पेमेंट। और अब तक करीब 70 करोड़ रुपया श्रमण आरोग्यम में साधु साधियों के लिए दिया। गत वर्ष ही सिर्फ 12 करोड़ से ज़्यादा। तो ये अमाउंट हर साल बढ़ता जा रहा है। एक साल के अंदर 12 करोड़ रुपया साधु साधियों के ऊपर खर्चा हुआ है श्रमण आरोग्यम के थ्रू। हमारा एक और प्रोग्राम है जीप, जीतो एजुकेशन असिस्ट प्रोग्राम, जिसके थ्रू हम हमारे बच्चों को पढ़ाते हैं। एक तरफ हम IAS IPS करते हैं, मगर जो बच्चे IAS IPS नहीं करना चाहते, वो IIT IIM या विदेश में जाके पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए ये जीतो एजुकेशन असिस्ट प्रोग्राम है। वो चाहे कहीं से भी हो, अगर वो अपना जैन बच्चा अच्छा है, पढ़ रहा है और उसके लिए उसके पास पर्याप्त पैसा नहीं है बाहर की यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ने के लिए, तो जीतो उसको लोन देता है करीब 3 लाख रुपए से लेके 20 लाख रुपए तक इंटरेस्ट फ्री लोन, जो उसको नौकरी लगने के बाद वो लग सकता है। ये प्रोग्राम सिर्फ 1 साल पहले शुरू हुआ है और इस 1 साल के अंदर 12 करोड़ रुपए से ज़्यादा की राशि लोन में जीतो के बच्चों को दे चुके हैं। और इसके भी 250 ट्रस्टी पूरे देश के अंदर 54 लाख के ट्रस्टी हैं जो इसके बन चुके हैं। तो जीतो हर तरह से बढ़ रहा है। जीतो से आप जुड़िए, जीतो के अंदर आप मेंबर बनिए। आप ये मत सोचिए कि मेरे ये 2 लाख या 15 लाख रुपया कुछ मेंबरशिप के जो हैं ये आपका इन्वेस्टमेंट है। अगर आप 2 लाख रुपये लगा रहे हैं तो आपको 10x मिलेगा, अगर आप 15 लाख लगा रहे हैं तो उसका भी 10x मिलेगा। मैं मेरे जीतो से शुरू से FCP के मेंबर रहा हूँ 2007 से, और जिस ढंग से जीतो के थ्रू मुझे बिजनेस के अंदर या दूसरे के अंदर फ़ायदा हुआ है वो असीमित है। आज जीतो की जो बॉन्डिंग है, हूस एंड हूस इंडिया के अंदर जीतो का मेंबर है, चाहे वो गौतम अदानी हो, चाहे वो टॉरेंट ग्रुप के सुधीर मेहता हो, चाहे माइक्रोलैब्स के दिलीप सुराना हो, चाहे सीलो वर्ल्ड हो, चाहे वल्लभ बंसाली इनाम सिक्योरिटीज़ के हो।
आपस में। तो ये एक ऐसी संस्था है जो जैनों की सबसे बड़ी संस्था है। आज गवर्नमेंट इस संस्था के अंदर अगर जैनों को कोई प्रॉब्लम है तो जीतो सबसे पहली एक संस्था है जो गवर्नमेंट को अप्रोच कर सकती है। हूस एंड हूस इसके अंदर है, तो आप इससे जुड़िए। जो अभी तक जीतो के मेंबर नहीं बने, आप इसके मेंबर बनिए। ये एक ऐसी है जो आपको बहुत सारी चीज़ों के लिए आपके दरवाजे खोलेगा। इसके थ्रू आप आपका बिजनेस बढ़ाएंगे, इंटर चैप्टर मिल सकते हैं। मैंने आपको चेन्नई का उदाहरण दिया, आज चेन्नई 6000 लोगों का परिवार हो गया। जीतो के थ्रू मैट्रिमोनी, आपके शादी ब्याह हो सकते हैं, हर तरह से जीतो कनेक्टेड। आज इंटरनेशनल चैप्टर्स क्यों खोल रहे हैं? उनको इंडिया में कनेक्ट चाहिए। वो बाहर जाके बस गए, अब इंडिया में उनका रूट, उनको बच्चे, उनके शादी नहीं हो रही है तो उनको इंडिया में कनेक्ट चाहिए। सो वहाँ पे भी चैप्टर खोल रहे हैं। यहाँ से आप एक्सपोर्ट का बिजनेस आप उनके साथ कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। तो आप सिर्फ मेंबर बन के सीमित मत रहिए, एक्टिव रहिए। एट द एंड आप बोलेंगे मैं तो मेंबर हूँ, 10 साल से मेरा कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अगर आपको आपका फ़ायदा निकालने के लिए आपको एक्टिव बनना पड़ेगा। आप जब तक एक्टिव नहीं रहेंगे आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा। आप एक्टिव होकर सबको मिलेंगे, सबसे बातचीत करेंगे, सबके साथ आप जुड़ेंगे, तभी आप इसका फ़ायदा निकाल सकते हैं। आप घर तक सीमित रहेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। किसी दूसरे को क्या पता आप कौन से धंधे में आप क्या है, जब तक आप चर्चा नहीं करेंगे। जैसे हमारा JBN का प्रोग्राम है चाय पे चर्चा, आप जैसे जैसे आप चर्चा करेंगे, आप बताएंगे, आपस में करेंगे। JBN के अंदर लास्ट ईयर 10,000 करोड़ का व्यापार जीतो सदस्य के आपस के अंदर हुआ है। तो ये एक ह्यूज प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू आप कनेक्ट कर सकते हैं। और मुझे ईरोड के अंदर बहुत सारी आशाएं हैं और मुझे उसमें बहुत क्षमता भी दिखती है कि ईरोड अच्छा ग्रो कर सकता है। तमिलनाडु के अंदर हमारे 3 चैप्टर हैं, चेन्नई, ईरोड और कोयम्बतूर। और मुझे लगता है ईरोड के थ्रू हमारे और भी चैप्टर खुल सकते हैं, तिरुपुर वगैरह। तो गौतम जी ऑलरेडी काम कर चुके हैं, मुझे पता है। गौतम जी के साथ मैं 2016 से जुड़ा हुआ हूँ एंड मुझे आशा है कि इनके 2 साल के अंदर ईरोड में मेंबरशिप और बढ़ेगी। मुझे ये 4 FCP से नहीं, हमारे यहाँ पे कम से कम 20 FCP होने चाहिए और 100-150 पेट्रन होने चाहिए। लेडीज़ विंग भी बढ़नी चाहिए। हमारे यहाँ चेन्नई में लेडीज़ विंग में होड़ है, 2000 मेंबर है। यूथ विंग 2000 मेंबर है। आपका ऐसा एक भी परिवार ईरोड में नहीं होना चाहिए जिसकी लेडीज़ आपके मेंबर नहीं है। आपको हर लेडीज़ में ईरोड में जितने भी जैन परिवार है उनको आपके साथ जोड़ना है, यूथ विंग को आपके साथ जोड़ना है। फिर हम लेडीज़ विंग से और यूथ विंग से कैसे उनको पे ट्रेन और FCP बनाते हैं वो गौतम जी के हाथ में है। जितना लेडीज़ विंग और यूथ विंग को बनाएंगे उनको फिर हम FCP और पे ट्रेन के अंदर कन्वर्ट करेंगे। तो एक बार जोरदार बधाई वापस गौतम साहब को बधाई और विनोद साहब को। एक्सेलेंट काम, आपके 2 साल बहुत ही ज़बरदस्त काम आपने किया और हम एपेक्स के साथ आपके साथ हमेशा जुड़े हैं। कुछ भी हो 24/7 एपेक्स पूरा का पूरा आपके साथ है। हमारे पृथ्वीराज जी कोठारी जो अभी हमारे चेयरमैन हैं, उनका इस 2 साल के अंदर यही है कि हमको हर नुक एंड कॉर्नर, हर जैन को जीतो के साथ जोड़ना है। तो इसी उद्देश्य के साथ हमारे ये 2 साल है, तो हम हमेशा आपके लिए उपलब्ध रहेंगे। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ और पुनः आप सबका बहुत बहुत बधाई देता हूँ। थैंक यू। धन्यवाद श्री नरेंद्र जी को। अभी मैं स्टेज पे TNAPT जोन के चेयरमैन श्री जितेंद्र जी भंडारी को आमंत्रित करता हूँ जो 2 शब्द व्यक्त करेंगे। सिर्फ प्रेसिडेंट वापस जवाब दे रहे हैं। जय जिनेंद्र। हाँ, कम से कम सब जगह हुए तो हैं। उपस्थित वडील, माताएं, बहनें, यार दोस्त, मेरे चेयरमैन, एपेक्स के वाइस प्रेसिडेंट होंगे। जब ये चेयरमैन थे चेन्नई चैप्टर के तब मैं चीफ सेक्रेटरी था और तब ईरोड चैप्टर शुरू हुआ था। और आज जब हम दोनों आए हैं, मैं जोन चेयरमैन हूँ और वो वाइस प्रेसिडेंट इंचार्ज ऑफ द जोन है। तो मेरे ख्याल से जब आपके इस साल में, इस टर्म में मेरे ख्याल से 10 साल पूरे होंगे आपके ईरोड चैप्टर के। 8 पूरे हो गए, 10 पूरे होंगे जब तक हमारा टर्म खत्म होगा। 8 पूरे होंगे। 18 में चालू हुआ था। ओके ओके ओके, ठीक है। तो कोई नहीं, 10 साल का सेलिब्रेशन 2 साल पहले कर लेंगे। तो जैसे नरेंद्र भाई ने भी बताया कि ईरोड में हमको पोटेंशियल बहुत दिखता है।
इतना पोटेंशियल है कि हम ऑलरेडी ईरोड से ये बात कर रहे हैं कि दूसरा चैप्टर आप कहाँ हमको खोल के दे सकते हो। तो आप ये समझिए जो माता किसी को जन्म दे सकती है वो खुद में कितनी क्षमता रखती होगी। और यहाँ का मैंने नंबर स्टडी करके आया हूँ, यहाँ का सबसे वाइब्रेंट विंग लेडीज़ विंग है। आज मेरे ख्याल से 75 से 100 का छलांग लगाने वाले हैं। तो गौतम साहब आपके पास, और वैसे भी इस तरफ लोग ज़्यादा हैं, इस तरफ से मैं काउंट किए बिना बता रहा हूँ। तो यूथ विंग, ऋषभ, यू हैव अ चैलेंज एट हैंड। वेयर इज ऋषभ? यू हैव अ चैलेंज एट हैंड बॉस। वन, आई थिंक हमको ये समझना पड़ेगा कि छोटा, जैसे नरेंद्र भाई ने भी बताया, छोटा नहीं, जहाँ सुई चाहिए वहाँ तो तलवार कैसे काम आएगी। चेन्नई होगा, 6000 का परिवार होगा, मैं खुद चेन्नई का हूँ, बट जो छोटे लोग छोटा चैप्टर कर सकते हैं वो बड़े चैप्टर नहीं कर सकते हैं। अपना एक छोटा सा नारा है, हर घर जीतो, घर घर जीतो। लेडीज़ विंग और यूथ विंग हमारा वो माध्यम है जहाँ हम हर घर तक पहुँच सकते हैं। और लेडीज़ विंग और यूथ विंग वो फीड स्टॉक देगा गौतम सा को और विपुल को कि मेंबरशिप को और बढ़ाएं। तो हम लेडीज़ विंग और यूथ विंग को बहुत आशा भरी नज़र के साथ देख रहे हैं। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ममता जी और ऋषभ से कि आके यू आर गोइंग टू सेट न्यू स्टैंडर्ड्स, न्यू बेंचमार्क्स। रिकॉर्ड से कोई मतलब नहीं है। अपने को 75 का 100 नहीं करना, 75 का 500 करना है। यूथ विंग 50 का 100 नहीं, 50 का 500। चेन्नई में नरेंद्र जी और मैंने चालू किया था यूथ विंग और लेडीज़ विंग, तब 7-7, 10-10 मेंबर थे। तब दोनों प्रेसिडेंट आए थे और हमको पूछा कि टारगेट क्या है भैया। टारगेट तो छोटा है, 1008। तब लग रहा था 10 लोग हैं, 1008 काम पहुंचेंगे। आज 2000 पे बैठे हैं और 2000 में अभी भी होड़ लगी हुई है। मेंबरशिप थोड़े दिनों के लिए रोका गया है। उस सिचुएशन में हम लोग कि हमने मेंबरशिप रोक के रखा है कि बस पहले है उसको संभाल लेवे एक बार, फिर ऐसा नहीं होगी हर कार्यक्रम स्टेडियम में करना पड़े। हाँ, तो और एक जोन की तरफ से मैं एक कमिटमेंट देना चाहता हूँ कि छोटे चैप्टर फंड्स का शॉर्टेज रहता है। जोन की तरफ से जितना भी आपको एपेक्स देगा उसका 100% मैचिंग अमाउंट जोन आपको देगा, भले वो मेन विंग हो, लेडीज विंग हो या यूथ विंग हो। जितना एपेक्स से आपको आएगा उतना हम मैच करेंगे। दूसरा, हम एपेक्स को रिक्वेस्ट करेंगे कि आपका ग्रांट बढ़ाए। जो 50% ऑफ द इंटरेस्ट आता है अभी हर चैप्टर को, मैंने नरेंद्र भाई ने ऑलरेडी प्रपोजल रखा हुआ है कि फॉर द स्मॉलर चैप्टर्स ग्रांट शुड बी 75% और 100%। तो हमारी तरफ से सारा सपोर्ट रहेगा। मेरा नंबर, मेरे ख्याल से विपुल और गौतम भाई तो ऑलरेडी हम लोग 50 बार बात कर चुके हैं। अभी तक तो इंस्टॉलेशन ही आज हो रहा है, ऑलरेडी 50 बार बात कर चुके हैं। और प्रोग्राम्स भी मेरे ख्याल से आपके स्टार्ट हो गए हैं। इंस्टॉलेशन तो एक फॉर्मेलिटी है। तो आपके पास एक बहुत ही वाइब्रेंट लीडरशिप है। गौतम भाई, विपुल भाई, ममता जी, ऋषभ, उनके चीफ सेक्रेटरीज, बहुत ही डायनामिक टीम है। आपके लिए मैं हमेशा हाजिर हूँ। मेरा नंबर आपके पास है, नहीं हो तो आप ले लीजिएगा मेरे जाने के पहले। और मेरा फ़ोन सिवाय प्लेन में रहूँ उसके अलावा कभी भी चालू रहता है और मैं उठाता भी हूँ, तो आपको वो दिक्कत नहीं रहेगा। वी आर ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू। ये आपके दिमाग से निकाल दीजिए कि आप छोटे चैप्टर है। एक ही चीज़ सोचिए कि जहाँ सुई चाहिए वहाँ तलवार काम आएगी क्या। और हाथी को गिराने के लिए हाथी की ज़रूरत नहीं पड़ती, चींटी चाहिए, जीटी बस है। तो ये जो आप अपने मन में धार लोगे वो होना ही है। तो ईरोड से हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ईरोड तो एज अ चैप्टर बहुत बढ़ेगा और उसके साथ तिरुपुर, सेलम, मदुरई, त्रिची, नीलगिरीज, ये सब हमको चैप्टर खोलने में जो मदद मिलनी है वो हम ईरोड और कोयम्बतूर से आशा कर रहे हैं। कोयम्बतूर के चेयरमैन भी यहाँ पे मौजूद हैं, इनकमिंग चेयरमैन राजेश जी बोरा, उनका अनुमोदन करता हूँ। और जोन की तरफ से पहली बार हम लोग ने ये इंश्योर किया है कि सारे चैप्टर्स को रिप्रेजेंटेशन मिले जोन में। तो जोन की टीम में ईरोड चैप्टर से मैं 2 नाम अभी घोषित कर देता हूँ, आलोक जी जैन और राजकुमार जी कटारिया संघवी। क्योंकि कटारिया और संघवी का जो प्रॉब्लम है मैं एक साथ में सॉल्व कर रहा हूँ। कटारिया, संघवी, राजकुमार जी, ये दोनों जोन के टीम में रहेंगे। पोजीशन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। खैर कोई भी पोजीशन हो, काम तो इनको सब करना पड़ेगा, वो ऑलरेडी हमारा बात हो चुका है। तो बहुत आशा के साथ आपको देख रहा हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग मेरे को बार बार बुलाते रहेंगे और मैं बार बार आता रहूँगा
और अपन ईरोड को बेस्ट चैप्टर अवार्ड के लिए नॉमिनेट हो, उस पोजीशन पे लेके जाएंगे। इसी आशा के साथ थैंक यू। जितेंद्र जी भंडारी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। अभी कार्यक्रम को आगे ले जाते हुए जो मेन कार्यक्रम अपना है आज का शपथ विधि का, तो वो कार्यक्रम शुरू करेंगे। सबसे पहले जो अपकमिंग टीम है उनके सभी सदस्य का नाम बोलूँगा, वो सभी स्टेज पे पधारेंगे। रूट चेंज थोड़ा कर लिया है इसके लिए। फर्स्ट अपने अपकमिंग यानी आज के बाद जो अपने चेयरमैन हैं गौतम जी बोत्रा स्टेज पे पधारेंगे। और आज एक वाकया और है, आज ही के दिन 2 साल पहले इन्होंने पद छोड़ा था और आज ही के दिन ये ग्रहण कर रहे। हाँ, अपने वाइस चेयरमैन आलोक जी जैन स्टेज पे पधारेंगे। वाइस चेयरमैन श्री प्रकाश जी जैन स्टेज पे पधारेंगे। चीफ सेक्रेटरी श्री विपुल जी चंडालिया स्टेज पे पधारेंगे। सेक्रेटरी श्री कल्पेश जी करबावाला स्टेज पे पधारेंगे। ट्रेजरर श्री राजेश जी छाजेड़ स्टेज पे पधारेंगे। जॉइंट ट्रेजरर श्री पुनीत जी कोचर स्टेज पे पधारेंगे। बोर्ड मेंबर श्री श्रीपाल जी बाफना स्टेज पे पधारेंगे। बोर्ड मेंबर श्री ललित जी धारीवाल स्टेज पे पधारेंगे। ये 9 मेंबर का बोर्ड मेंबर है। इसके बाद में कन्वेनर के नाम है श्री राज कटारिया, इनको खाली प्ले। फर्स्ट बोर्ड मेंबर के ओथ के लिए मैं श्री जीतो एपेक्स वाइस प्रेसिडेंट श्री नरेंद्र जी सिसमाल को स्टेज पे आमंत्रित करता हूँ। लेडीज विंग के चेयरपर्सन ममता जी सिंघवी स्टेज पे पधारेंगे। चीफ सेक्रेटरी समता जी बोत्रा स्टेज पे पधारेंगे। यूथ विंग के चेयरमैन ऋषभ जी पारेख स्टेज पे पधारेंगे और चीफ सेक्रेटरी अमन जैन स्टेज पे पधारेंगे। आप अपना अपना नाम बोलेंगे और अपना अपना पोस्ट बोलेंगे मन के अंदर, बाकी बोलते जाएंगे। मैं अपना नाम बोल लीजिए। जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जीतो, अपना चैप्टर का नाम बोलिए। के प्रबंध समिति के पद बोलिए आपके। रूप में सेवा, शिक्षा, आर्थिक सदृढ़ता, सामाजिक उत्कर्ष एवं आध्यात्मिक उन्नति के आदर्शों को प्रति स्वयं को समर्पित करते हुए एवं भगवान महावीर का स्मरण करते हुए संकल्प करता हूँ कि इस संस्था के विधान एवं उद्देश्यों के अंतर्गत निष्ठापूर्वक कार्य करूँगा। कॉन्ग्रेचुलेशन। के कन्वीनर श्री राजकुमार जी कटारिया, जेटीएफ के कन्वीनर श्री आशीष जी खाटेड़, जीतम के कन्वीनर नरेश जी संघवी, मेंबरशिप ड्राइव के कन्वीनर प्रकाश जी जैन, जीतो जॉब्स के कन्वीनर चंद्रकांत जी मेहता, जीतो माइनॉरिटी के राकेश जी राठौड़, जीतो मैट्रिमोनी के भरत जी दोषी, सेंटर फॉर एक्सीलेंस के सुनील जी बाफना, जीतो प्रोफेशनल फॉर्म के किरण जी सुराना, जीतो स्पोर्ट्स के रविंदर जी लुणावत, जे पॉइंट के कन्वेनर श्री संदीप जी पारेख, जिफ के कन्वेनर राजेंद्र जी संकलेचा, जीतो इंटरनेशनल के चेतन जी खाटेड़, जीतो लेडीज़ विंग कन्वेनर आलोक जी जैन, यूथ विंग के कन्वेनर संकेश जी लुणिया, जीतो एजुकेशनल अवेयरनेस प्रोग्राम के सुनील जी बोरा, जीतो सोशल मीडिया के कमल जी बोत्रा, श्रमण आरोग्य के पुरुषोत्तम दास सेठिया, संजय जी बुरट, जीतो कनेक्ट सेवा के आनंद जी सुराना, जीतो वर्ल्ड के राजेश जी कोचर, सब स्टेज पे पधारेंगे। इनका ओथ जीतो एपेक्स वाइस प्रेसिडेंट नरेंद्र जी कराएंगे।
आप अपना नाम बोलेंगे और पद बोलेंगे, चैप्टर बोलेंगे, ठीक है ना। मैं जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जीतो, अपना चैप्टर का नाम बोलिए, के प्रबंध समिति के, अपना अपना पद बोलिए, रूप में सेवा, शिक्षा, आर्थिक सदृढ़ता, सामाजिक उत्कर्ष एवं आध्यात्मिक उन्नति के आदर्शों के प्रति स्वयं को समर्पित करते हुए एवं भगवान महावीर का स्मरण करते हुए संकल्प करता हूँ कि इस संस्था के विधान एवं उद्देश्यों के अंतर्गत निष्ठापूर्वक कार्य करूँगा। बधाई सबको। कार्यक्रम को आगे ले जाते हुए लेडीज विंग चेयरमैन ममता जी कटारिया जी, वाइस चेयरपर्सन मीना जी पारेख, वाइस चेयरपर्सन मीना जी बोत्रा, चीफ सेक्रेटरी समता बोत्रा, जॉइंट सेक्रेटरी कविता करबावाला, जॉइंट सेक्रेटरी मोनाली जैन, ट्रेजरर शर्मिला जैन, कन्वेनर डॉली जी बोत्रा, ममता मेहता, सारिका निपजिया, कोमल करबावाला, शकुंतला जी जैन, राखी जी सुराणा, शर्मिला बाफना, विनीता राठौड़, श्रद्धा चंडालिया, दीपिका बोत्रा, ऋषिका छाजेड़, विदिता बुरट, नीतू बुरट, संगीता बंसाली, अनीता खाटेड़, सारिका कोचर, अलका बांटिया, राखी जैन, सविता जैन, शिल्पा लूनिया, अंकिता जैन और सपना धारीवाल सभी स्टेज पे पधारेंगे, उनका शपथ विधि रहेगा। सपना बंसाली, इतना जोश से शपथ लीजिए कि 100 मेंबर और वैसे ही बन जाए। मैं, आप अपना नाम बोलेंगे, जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जीतो ईरोड चैप्टर के लेडीज विंग की सदस्य के रूप में सेवा, शिक्षा, आर्थिक सुदृढ़ता, सामाजिक उत्कर्ष एवं आध्यात्मिक उन्नति के आदर्शों के प्रति स्वयं को समर्पित करते हुए एवं भगवान महावीर का स्मरण करते हुए संकल्प करती हूँ कि इस संस्था के विधान एवं उद्देश्यों के अंतर्गत निष्ठापूर्वक कार्य करूंगी। कांग्रेचुलेशंस, ऑल द बेस्ट। लेडीज विंग के न्यू मेंबर को इनवाइट करने के लिए चेयरपर्सन ममता जी कटारिया बता Congratulations and celebration when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilation. I want the world to know I'm happy as. मैं नए मेंबर्स में सबसे पहले डिम्पल जी मुनोत, उनको स्टेज पे बुलाना चाहूँगी। सारिका जी निबिजिया, सूरज जी सिश्रीमाल, दर्शना करबावाला, इंदिरा जी पारेख, कविता जी बाफना, कोमल जी भूरट, पार्थी जी मेहता, कविता जी लुक्कड़, सोनल सालेचा, तृप्ति बोथरा, बिंदु जी डागा, इंदू जी चोपड़ा, डिम्पल जी भूरट, सपना जी बंसाली, सुशीला जी बाफना, निशा बाबेल, निकिता लुक्कड़, शकुंतला जी बागमार, सुनीता जी बागमार,
तरुणा जी बागमार, पीना जी वेदमुता, कोमल पीयूष जी बुरट, रेणु जी नखत, ईसा जी शेठिया, उषा जी लुनावत। लेडीज़ विंग के नए सदस्य को सदस्यता दिलाने के लिए मैं जितेंद्र जी भंडारी को आमंत्रित करता हूँ स्टेज पे। नारी शक्ति के लिए एक बार जोरदार तालियां। 75 से 100% में 33% होता है, इतना हिसाब तो अपन को आता है। तो गौतम साहब, अगर आपको 33% बढ़ना है तो आपको मिनिमम 20 पैटर्न ऐड करने पड़ेंगे। आप मेरे साथ बोलेंगे। मैं, अपना नाम, जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जीतो ईरोड चैप्टर के लेडीज़ विंग की सदस्य के रूप में सेवा, शिक्षा, आर्थिक सुदृढ़ता, सामाजिक उत्कर्ष एवं आध्यात्मिक उन्नति के आदर्शों के प्रति स्वयं को समर्पित करते हुए एवं भगवान महावीर का स्मरण करते हुए संकल्प करती हूँ कि इस संस्था के विधान एवं उद्देश्यों के अंतर्गत निष्ठापूर्वक कार्य करूँगी। वेलकम टू जीटो। जीतो ईरोड यूथ विंग का शपथ विधि रहेगा। जिनकी भी सदस्य के नाम बोले जाते हैं वो स्टेज पे बताएंगे। चेयरमैन ऋषभ जी पारेख, चीफ सेक्रेटरी अमन जैन, वाइस चेयरमैन नरेश कुमार, वाइस चेयरमैन पीयूष बाफना, सेक्रेटरी योगेश बोरा, सेक्रेटरी हर्षल कुमार, ट्रेजरर प्रतीक बोत्रा, कन्वेनर प्रतीक धारीवाल, दीपेश जैन, अमन बाफना, गगन राठौड़, ऋषभ राठौड़, मोती जैन, संस्कार जैन, शुभम बोरा, अंकित जैन, मोहित बोत्रा सभी स्टेज पे पधारेंगे। और उनकी शपथ विधि के लिए मैं टीएपीटीसी जॉन के चेयरमैन जितेंद्र जी को स्टेज पे आमंत्रित करता हूँ। मैं जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जीतो ईरोड चैप्टर के यूथ विंग के सदस्य के रूप में सेवा, शिक्षा, आर्थिक सुदृढ़ता, सामाजिक उत्कर्ष एवं आध्यात्मिक उन्नति के आदर्शों के प्रति स्वयं को समर्पित करते हुए एवं भगवान महावीर का स्मरण करते हुए संकल्प करता हूँ कि इस संस्था के विधान एवं उद्देश्यों के अंतर्गत निष्ठापूर्वक कार्य करूँगा। कंग्रेचुलेशंस। एक बार जोरदार तालियां। 50 से 500 का टारगेट लेके खड़े हैं, सबका सपोर्ट चाहिएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। अपने ईरोड चैप्टर के नए चेयरमैन गौतम जी बोत्रा स्टेज पे अपना स्वीकृति भाषण प्रदान करने के लिए पधारेंगे। श्रीमन भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। यहाँ विराजित दादा कुंतुनाथ के चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन। पधारे हुए जीतो एपेक्स वाइस प्रेसिडेंट श्री नरेंद्र जी श्री श्रीमाल, जॉन चेयरमैन जीतू जी भंडारी, कोयम्बतूर से पधारे हुए कोयम्बतूर चेयरमैन राजेश जी बोरा और आउटगोइंग कमेटी के चेयरमैन विनोद जी, कल्पेश जी, मेरे जीतो साथियों,
लेडीज विंग, यूथ विंग, सबको सादर जय जिनेंद्र प्रणाम। आपने मुझ पर जो विश्वास कर नई जिम्मेवारी दी है, हमारी टीम को जो नई जिम्मेवारी दी है, मैं पूरा विश्वास दिलाता हूँ, कोशिश करूँगा कि ये जिम्मेवारी को अच्छे से निभाऊँ और जीतो को नई ऊंचाइयों पर ले जाऊँ, जिससे हम समाज को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ दे सकें। मैं आने वाले 2 साल के कार्यक्रम में जो कार्यक्रम करने का विचार है, उसका मैं एक रूपरेखा आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले यहाँ के चैप्टर की ज़रूरत है मेंबरशिप को बढ़ाने की। तो मेंबरशिप को बढ़ाने के लिए खाली अकेला चेयरमैन नहीं काम कर सकता, पूरी टीम को साथ में मिलके काम करना पड़ेगा। पहले जिस प्रकार हम 22 और 4 25 मेंबर थे, 25 से 57 तक लेके गए, तो अभी मेहनत करेंगे तो पक्का 100 तक लेके जा सकते हैं, लेकिन उसमें सबको साथ में चलना पड़ेगा, सबको साथ देना पड़ेगा। खाली ये चेयरमैन अकेला नहीं कर पाएगा। इसलिए जो भी जीतो मेंबर है, मैं सबसे विनती करता हूँ, हर आदमी कोशिश करे एक एक नया मेंबर ले आए, तो पक्का हम 100 की संख्या के पार कर सकते हैं। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। और जो अभी जिसकी अपने को ज़्यादा ज़रूरत है, वैसे कार्यक्रम करेंगे। अलग अलग स्पीकर बुला सकते हैं। जैसे अभी साइबर क्राइम का बहुत कांड हो रहे हैं, व्हाट्सएप पे कॉल आते हैं, लोगों के पैसे चले जाते हैं। अभी रिसेंट ईरोड में भी अपने भाई लोगों के यहाँ से कुछ हाउस अरेस्ट करके पैसे निकल गए थे। तो इसके लिए हम कोशिश करेंगे, इसके जो स्पेशलिस्ट बुला के एक सेमिनार कराएंगे कि इस तरह का कोई कांड हो तो कैसे उससे निपटा जाए, या कॉल आया तो कैसे बात की जाए, कैसे हैंडल किया जाए। तो इस तरह का हम कार्यक्रम करने की कोशिश करेंगे। दूसरा, हम बुलाएंगे जो अपन सब बिजनेसमैन हैं, व्यापार सब अपने हिसाब से करते हैं। जो व्यापार से पैसा निकलता है, हर आदमी कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करता है, तो उसको इन्वेस्ट कैसे सही तरीके से करें, उसके लिए इन्वेस्टिंग विशेषज्ञ या स्टॉक मार्केट के स्पेशलिस्ट, कई लोग अभी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट भी करते हैं, लेकिन उल्टा सुल्टा सट्टा करके F&O करके नुकसान भी कर लेते हैं। तो इसके लिए अपन अलग स्पेशलिस्ट बुला के ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ अपॉर्चुनिटी हो सकती है, कहाँ अपन उसका फ़ायदा उठा सकते हैं, वो कार्यक्रम करने की कोशिश करेंगे। और एक प्रोग्राम ऐसा करेंगे कि जिसमें हर आदमी के अंदर कुछ ना कुछ पोटेंशियल ज़रूर होता है, ज़रूरत होती है उस पोटेंशियल को निकालने की, कि उसकी लीडरशिप कैसे डेवलप की जाए। जो लीडरशिप डेवलप करने वाले स्पीकर है या विशेषज्ञ है, उनको बुला के हर आदमी की, हर लेडीज, यूथ विंग, सबकी लीडरशिप कैसे बाहर निकाली जाए, कैसे यूज किया जाए, उस तरह के प्रोग्राम करेंगे। दूसरा सबसे बड़ा फोकस रहेगा, अभी तक ईरोड चैप्टर में JBN के कोई कार्यक्रम ज़्यादा नहीं हुए हैं। तो JBN में इस बार जो राजू जी कटारिया चला के बने हैं कि मेरे को आप JBN बनाओ, मैं काम करूंगा, क्योंकि JBN के माध्यम से ही जीतो आगे बढ़ेगा। तो कोशिश ये करेंगे कि JBN के ज़्यादा से ज़्यादा कार्यक्रम हो, जिससे लोगों को फ़ायदा हो और जीतो के नए मेंबर जुड़े और लोगों को मालूम पड़े कि जीतो क्या है, हम उसका कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं। और एक काम ये कर सकते हैं, कोई अच्छा सा जैन IAS ऑफिसर बुला के 12th से ऊपर जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं बच्चे, उनका एक सेमिनार करा के कि भाई आपको इस लैंड में जाना चाहिए, IAS क्यों नहीं बनना चाहिए। कई लोग बनना भी चाहते हैं, लेकिन सही मार्गदर्शन नहीं होता है तो वो भटक जाते हैं। तो उनको बुला के क्या प्रोसीजर होता है, कैसे एडमिशन होता है, ये सब करके कराएंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस तरफ अग्रसर हो सकें। और जो अपने जीतो की तरफ से जीप का कार्यक्रम है, हम कोशिश करेंगे यहाँ के किसी बच्चे को जीप लोन की ज़रूरत है तो उसको हाथों हाथ तुरंत लोन दिलाने में हम सहयोग करेंगे। दूसरा, जीतो जॉब जो अपना कार्यक्रम चलता है, उसमें अपना कोई भी साधर्मिक भाई जिसको जॉब की ज़रूरत है, वो अगर हमसे कांटेक्ट करेगा तो जीतो जॉब के माध्यम से हम उनको ज़रूर जॉब दिलाने की व्यवस्था करेंगे। हम लोग माइनॉरिटी में हैं, कई लोगों के पास अभी तक माइनॉरिटी सर्टिफिकेट नहीं बने हैं, तो ऐसा करेंगे माइनॉरिटी सर्टिफिकेट के लिए कैंप बना के हर आदमी के पास एक माइनॉरिटी प्रूफ के लिए माइनॉरिटी सर्टिफिकेट बनाने की कोशिश करेंगे। और एक प्रोग्राम ये करेंगे, जीतो फैमिली के लिए कोई विदेश भ्रमण का टूर हो, एंटरटेनमेंट के लिए फॉरेन टूर का प्लान करने की जरूर कोशिश करेंगे। और भी कई कार्यक्रम हैं, जैसे जैसे आप लोगों का सुझाव आएगा, जिसको कुछ कार्यक्रम करना है जो मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है,
वो ज़रूर करेंगे। देखो दोस्तों, आप जितो मेंबर बनते हैं तो वो हिसाब मत लगाइए कि मैंने 2 लाख दिया, 11 लाख दिया। इससे जो नेटवर्किंग बढ़ेगी वो पैसा कहीं भी वसूल हो जाएगा। मैं अपना उदाहरण बताता हूँ। जब मैं 2018 में चैप्टर लॉन्च हुआ, 2018 में सीपी बना था, तो 2018 में भाई साहब ने कनेक्ट कराया था। हम लोग वहाँ गए तो वहाँ पे जो ट्रेड फेयर लगा था, एक कंप्यूटर वाला मिल गया। वो कंप्यूटर बाजार वो कहीं से लोग उठा के लेके आया था। उस कंप्यूटर की वैल्यू थी बाजार में 1,25,000 रुपये। हमने नेगोशिएट करके उसको 48,000 में नक्की किया। कम से कम 25 कंप्यूटर उठा लिए, कंप्यूटर नहीं लैपटॉप थे, सॉरी 25 लैपटॉप उठा लिए। तो सबको फायदा होगा, पैसा कहीं से निकल गया। एक काम कर लो, जो जीतो मेंबर है ना अपने, उनकी लिस्टेड कंपनी है, उनके आप शेयर खरीद लो, पैसा वो अपने आप निकल जाएगा। चेन्नई के अपने मेंबर हैं जीतो के अनिल जी जैन, उनकी कंपनी है रिफैक्स, उसके शेयर मैंने लिए थे 4-5 साल पहले, आज वो 15 गुना हो गए। मोतीलाल जी ओसवाल है, उनकी कंपनी के शेयर ले लिया तो आज 4 गुना हो गए। ऐसे कई मेंबर है। वारी के हितेश जी दोषी, इनका अभी IPO भी आया था, हाँ, उनके शेयर ले लिए तो मल्टीप्लाई हो गए। जो अपने जीतो मेंबर है उनके भी आप कंपनियों में इन्वेस्ट करोगे तो कहीं भी पैसा बन जाएगा। और दूसरा, जो भी जीतो के बाहर के कार्यक्रम होते हैं उसमें अगर जाएंगे अपन, तभी लोगों से संपर्क बढ़ेगा, तभी नेटवर्क बढ़ेगी, तभी बिजनेस बढ़ेगा। आज मैं एक बात बताऊं, अपने जो हिंदुस्तान की इंटरनेशनल ब्रांड है किलर जींस, केवल किरण क्लोथिंग किलर जींस है, जिसका लिस्टेड कंपनी का शेयर है। उससे अगर आज मेरे को या आपको किसी को मिलना है तो मिलना मुश्किल नहीं है। जीतो के माध्यम से मेरा परिचय भी हो गया, उनसे बिजनेस भी होता है, उनके सीधे फोन भी आता है, कोई छोटा मोटा काम होता है तो काम भी हो जाता है। बॉम्बे गया तो मेरे को बुलाया, यार ऑफिस में आओ, बैठते बातचीत करते हैं, कॉफ़ी पीते हैं। और ऑफिस में जाते हैं तो उनकी सिक्योरिटी इतनी अनाप शनाप है, हर आदमी की एंट्री बहुत मुश्किल है। तो ये सब जीतो की नेटवर्किंग का कमाल है। तो हर आदमी प्लेटफॉर्म का फ़ायदा उठाएगा तभी उनको फ़ायदा होगा। और मैं डायनेमिक चेयरमैन ममता जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। उन्होंने 1 महीने के अंदर इतने मेंबर जोड़े हैं, और ये सब जो कि वही बधाई देता हूँ। और आगे कार्य करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर जोड़ने की कोशिश करेंगे। और मैं ये आप लोगों को प्रॉमिस देता हूँ कि मेंबरशिप ड्राइव में हम कोशिश करेंगे कम से कम 100 मेंबर नहीं तो 70-80 मेंबर तक ले जाने की जरूर कोशिश करेंगे। धन्यवाद सर। यूथ विंग में एक नए मेंबर बने हैं, ऋषभ बंसाली स्टेज पे पधारेंगे। उनको ओथ देने के लिए मैं ओथ नहीं, जरूरत नहीं, खाली बैच स्टेज पे पधारेंगे ऋषभ। जीतो लेडीज विंग चेयरपर्सन ममता जी सोंगी को स्टेज पे आमंत्रित करता हूँ, जो अपना स्वीकृति भाषण प्रदान करेंगे। कुंतुनाथ दादा के चरणों में कोटिश कोटिश वंदन। हमारे जीतो एपेक्स के प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट श्री मनीष जी, नरेंद्र जी सुषमाल, जीतो एपेक्स जोन के चेयरपर्सन श्री जितेंद्र जी भंडारी, सम्मानित मंच और आए हुए सभी जीतो मेंबर्स का मैं जीतो लेडीज़ विंग की तरफ से आप सबका हार्दिक हार्दिक स्वागत करती हूँ। आपने मुझे जो दायित्व दिया है उसको मैं पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ पूरा करने का प्रयत्न करूँगी। विशेषतः मेरी जीतो की बहनें एवं आप सबका सहयोग मिले, इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ जय जिनेंद्र। धन्यवाद। ममता जी को धन्यवाद। कार्यक्रम में आगे जीतो यूथ विंग चेयरमैन श्री ऋषभ जी पारेख को स्वीकृति भाषण के लिए आमंत्रित करता हूँ। जय जिनेंद्र, respected members, elders, guests and my dear friends, it's an honor to be entrusted with this position, and I promise to work hard to ensure the Jito continues to grow, fostering both business success and social responsibility. The sense of Jito, the strength of Jito lies in its members. You are the heart and soul, and your support, ideas and collaboration will be the key to our collective success. I encourage each and every member to actively take part, share your expertise and help us create an environment where we can create new opportunities and flourish. In conclusion, I want to express my gratitude to each one of you for your trust and confidence in me. Let us all work hand in hand and take Jito to new heights. Thank you. Jai Jineन्द्र। धन्यवाद ऋषभ जी को। कार्यक्रम अंतिम बढ़ान बढ़े अपने नए चीफ सेक्रेटरी
विपुल जी चंडालिया को मैं वोट ऑफ थैंक्स देने के लिए आमंत्रित करता हूँ। सबसे लास्ट और सबका समय हो रहा है, तो आप लोग सब पधारे इसलिए धन्यवाद। थैंक यू।